Bismillahirrahmanirrahim, Class 7 English. Today we are going to solve an exercise, page number 40. Actually, we have read this lesson, The Fiction, A Christmas Story. In this story, we have learned many things. Definitely, in World War One, German army and the Britain army were fighting against each other. And when Christmas Day comes, during their war, and then how do they celebrate this Christmas Day? And forgetting their enmity and everything, definitely they mingle with one another, they just develop a friendship with one another, and definitely they want to have a peace. But uh, what the factors are forcing them to do a war? it was uh, it was against the humanity, we can say. So in this exercise, in this comprehension, we are going to discuss about different questions, and we will discuss their answer also. The first question is, what was the significance of the white flag? वाइट फ्लैग की क्या सिग्निफिकेंस है, क्या अहमियत है, क्या अहमियत थी? वट वॉज द सिग्निफिकेंस ऑफ वाइट फ्लैग? पैराग्राफ नंबर 2 के अंदर बेटे बताया गया कि वाइट फ्लैग जब उन्होंने लहराया, तो वाइट फ्लैग क्या होता है? वाइट फ्लैग बेटे अमन के लिए होता है. अ वाइट फ्लैग सिंबलाइजेस पीस. It is a sign of peace, you can say. And when a white flag is waved, it means that there is no war, that we are not going to fire one another, each other. We are not going to continue our war. We are just bringing peace. So this was the significance of white flag. White flag is a symbol of peace, and when white flag is waved, you can say, then it means that we are going to end this war just for a while. What were the colors of the German and British uniforms? जर्मन और ब्रिटिश यूनिफॉर्म के कलर्स कैसे थे? कैसे कलर थे बेटे? द जर्मन्स वर वेयरिंग ग्रे कलर यूनिफॉर्म, एंड द ब्रिटिश सोल्जर्स वर वेयरिंग खाकी कलर यूनिफॉर्म. ये मेंशन हुआ है वहाँ पर. The color of the German soldier was, the color of the German soldier's uniform was grey, and the color of British soldier's uniform was khaki. Why did Jim, the writer of the letter, tell his men to keep the heads down? वो क्यों अपने आदमियों से कहता है कि अपने हेड डाउन कर लें? ये पेज पैराग्राफ नंबर 2 में मेंशन किया गया है. ये देखिए हमारे पास ये पैराग्राफ नंबर 2 में है, एंड में है बेटे. कीप योर हेड्स डाउन, एंड में लिखा हुआ है. क्यों बेटे? आगे उसने एक्सप्लेन भी किया. आई टोल्ड द मैन इट्स अ ट्रिक बट इट वाजंट. फर्स्ट ऑफ ऑल ही थॉट दैट इट वाज अ ट्रिक फ्रॉम जर्मन साइड, बट इट वाजंट अ ट्रिक. सो ही एट फर्स्ट ही सेड टू हिज मैन to keep their heads down, कि अपने सर वो नीचे कर लें. Next is, how can you tell from the words of the German who was waving a bottle that his English was limited? कैसे बेटे एक जर्मन सोल्जर जो था, जो अपने ऊपर बोतल लहरा रहा था, कि उसकी इंग्लिश जो थी वो लिमिटेड थी? ये कैसे आप कह सकते हैं? ये पैराग्राफ नंबर 3 के अंदर बताया गया है. ये देखें, उसके कुछ वर्ड्स हैं, सेंटेंसेस हैं, वो हमें इंडिकेट करते हैं कि हिज इंग्लिश वॉज वेरी वीक, हिज इंग्लिश वॉज लिमिटेड. लुक एट इट. ही वॉज सेइंग, टॉमी, वी हैव फूड, वी हैव टिन मीट, वी मीट यू. वी मीट यू एक्चुअली. यस, a question mark. His English was limited because he was not speaking the full sentences. He was just asking, yes, मतलब है, we meet you, next is question mark. We meet you, question mark. Yes, question mark. So these words, these sentences, short sentences indicate that his English was limited.
Next is why did Jim not stop his men walking out into no man's land? क्यों Jim was the officer of English side. Jim was the officer of English soldiers. But he did not stop his men walking out into no man's land because he also wanted peace. वो भी अमन चाहता था. He also wanted peace. He wanted to enjoy the Christmas party. वो क्रिसमस पार्टी को enjoy करना चाहता था. Next is 6. What did Jim find out about Hans Wolf? पैराग्राफ नंबर 4 and 5. 4 and 5 में हैंस वुल्फ के बारे में क्या पता चला है? 4 and 5 में ये देखें बेटे. 4 में अगर हम देखें तो सबसे पहले उसने अपने आप को इंट्रोड्यूस कराया 4 में कि फ्रिट्स ऑफिसर जो हैंस वुल्फ था. हैंस वुल्फ नाम है उसका. और नेक्स्ट क्या कहता है? ही वॉज फ्रॉम डुसलड्रॉफ से था वो. ही यूज टू प्ले द सेलो. वो सेलो बजाता था. किस में बेटे? इन द ऑर्केस्ट्रा में वो सेलो बजाता था. फिर नीचे पैराग्राफ नंबर 5 में उसकी फैमिली के बारे में बताया गया. ही हैड अ वाइफ एंड 1 सन बॉर्न जस्ट 6 months ago. 6 महीने पहले पैदा होने वाला उसका एक बेटा था और उसकी एक बीवी थी. ठीक है, तो ये चीज़ें उसको पता चली, मतलब है हैंस वुल्फ के बारे में, जो कि जर्मन ऑफिसर था. तो ये आपने वहाँ पर लिखना है कि ही केम टू नो अबाउट हैंस वुल्फ दैट ही वॉज फ्रॉम, कहाँ से था बेटे? ही वॉज फ्रॉम डुसलड्रॉफ से था. ही यूज टू प्ले द सेलो इन द ऑर्केस्ट्रा. वो ऑर्केस्ट्रा में सेलो प्ले करता था. ही हैड अ वाइफ एंड 1 son born 6 months ago. एक बीवी थी उसकी, एक बेटा था जो कि 6 माह पहले पैदा हुआ था. ये हैंस वुल्फ के बारे में जिम को पता चला. What activities did British and German soldiers share on that Christmas morning? They were dancing. They were enjoying Christmas party. They played football together. They shared their food. उन्होंने अपनी फूड शेयर की, डांस किया. They were drinking together. They were smoking together. Different activities थी वो जो enjoy कर रहे थे. They were drinking, smoking and sharing their food. They were dancing in circles. In the end, they played a football match with one another. तो ये बेटे जर्मन सोल्जर्स और ब्रिटिश सोल्जर्स ने एक्टिविटीज़ शेयर की क्रिसमस मॉर्निंग पर. What was the significance of the breaths of Jim and Hans mingling in the air between them? पैराग्राफ नंबर 6 में बताया गया ना कि वो इतने क्लोज हो गए थे कि उनके सांस भी एक दूसरे के साथ मिल रहे थे. And they were so close to each other that they forgot their enmity. They were behaving like friends. एक दूसरे के साथ फ्रेंड्स की तरह खड़े थे. उनके सांस आपस में मिल रहे थे. It means they were away from the war. Now they were just for the sake of humanity, for the sake of Christmas. They have forgot their enmity. They have become good friends of each other. Why does Hans think that a football match would be a good way of resolving the war? क्यों बेटे हैंस वुल्फ ने ऐसे सोचा कि फुटबॉल मैच जो है वो जंग रिजॉल्व करने के लिए, इस मसले का हल निकालने के लिए फुटबॉल मैच अच्छी चीज़ है? क्यों बेटे? बिकॉज अकॉर्डिंग टू हिम, उसके मुताबिक क्या था बेटे? इन अ फुटबॉल मैच नो वन डाइज. कोई मरता नहीं है फुटबॉल मैच में. इट्स अ हेल्दी कंपटीशन है. तो ये उसकी सोच थी, ये उसकी थिंकिंग थी, जिसमें उसने समझा कि फुटबॉल मैच वुड बी अ गुड वे ऑफ रिजॉल्विंग द वॉर. नंबर 10. व्हाई डू यू थिंक हैंस वाज रिटर्निंग अनविलिंगली टू हिज ट्रेंच? क्यों बेटे अपने ट्रेंच की तरफ अनविलिंगली रिटर्न हो रहा था? क्यों?
बिकॉज ही जस्ट हैड enjoyed his party. वो अपनी पार्टी इंजॉय कर चुका था. He forgot the enmity, his enmity with ब्रिटिश सोल्जर्स. वो ब्रिटिश सोल्जर से अपनी दुश्मनी भूल चुका था. एंड ही डिड नॉट वांट टू जॉइन द वॉर अगेन. वो दोबारा वॉर को जॉइन नहीं करना चाहता था. ही वांट टू बिल्ड अप हिज गुड रिलेशंस विद द ब्रिटिश. ब्रिटिश के साथ वो अच्छे रिलेशंस बिल्ड अप करना चाहता था. दैट्स वाई ही वॉज रिटर्निंग अनविलिंगली. इस यही वजह थी कि वो अनविलिंगली, ना चाहते हुए वापस जा रहा था अपने ट्रेंचेस की तरफ, खंदक की तरफ. तो ये बेटे 10 क्वेश्चंस हैं जो मैंने आपको पढ़ा दिए. आपने इनको इस तरह कोशिश करनी है कि आप इनको लिखें. ओके, कल तक के लिए अल्लाह हाफिज़.